أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال آپ سب کا؟ کیسی گزری آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھی گزری۔ الحمدللہ۔ آج ہم نے انشاءاللہ چھٹیاں ہماری ختم ہو گئی ہیں تو ہم اپنا لیکچر نمبر 14A اور B انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ عصر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور گرامر میں ہم اپنا فعل مضارع جو تھا باقی کا کمپلیٹ کریں گے، یضربو، یسمعو، یعلمو اور یعملو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہم ایک نیا لفظ بھی پڑھیں گے، نیا حرف پڑھیں گے، ماذا، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم لوگ روز ہر لیکچر میں کوئی چھوٹی چھوٹے الفاظ جو ہیں وہ سیکھتے رہتے ہیں، کوئی حرف سیکھ لیتے ہیں، کوئی اسما سیکھ لیتے ہیں عربی کے، تو ہمارا کافی فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی تلاوت سن لیتے ہیں سورہ عصر کی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی، تو یہ والی جو صورت ہے نا، اس کے اندر ہم دیکھیں گے بڑی بہت ہی ایک امپورٹنٹ پہلو ہے اس کے اندر۔ چھوٹی سی صورت ہے بالکل، اور الحمدللہ ماشاءاللہ موسٹلی یہ لوگوں کو، ہم سب کو آتی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جب یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ چھوٹی صورت ہے تو اس کو ہم یاد کر لیتے ہوتے ہیں، جس کو نہیں آتی اس کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی بس، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ اس کی مختصر سی ہم شرح دیکھیں گے، ترجمہ بھی آلموسٹ ہم نے چھوٹے ہوتے پڑھا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ انسان کے لیے اس میں خسارے سے بچنے کے لیے فارمولا ہے، ٹھیک ہے؟ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا ہی ورڈ ہے نا یہ؟ نقصان۔ نقصان، گھاٹا۔ بالکل، تو یہ نقصان سے بچنے کا ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے فارمولا بتا دیا، ہماری نجات کا فارمولا بتا دیا، یعنی کہ کس کا فائدہ؟ ہمارا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے ابھی مزید انشاءاللہ ان پوائنٹس کو آگے ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر 4 امپورٹنٹ باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 ہماری ذات سے متعلق ہیں، ہم سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے عقیدے اور اعمال کے بارے میں، اور 2 جو ہیں وہ معاشرے سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ابھی اس سلائیڈ پہ اس چیز کو ہم دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو والعصر، اب یہاں پہ آج ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ نئی چیز سیکھنی ہے۔ وا کا معنی جو ہم نے پہلے سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وا کا اور آج ہم لوگوں نے اس کے اندر کیا پڑھیں گے؟ انٹرسٹنگ چیز، یہاں پہ وا کا معنی جو ہے وہ قسم کے معنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ اکثر عربیوں کو دیکھ کے کبھی دیکھے واللہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح کر کے ہوتا ہے نا واللہ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یا والعصری، ٹھیک ہے؟ اس سے یاد رکھیں آپ کہ قسم ہے زمانے کی، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سی، یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی اس میں قرآن کی بلاغت اور وہ اتنی وسیع زبان ہے اور فصیح زبان بھی ہے کہ اتنی چھوٹی سی آیت میں 1 ورڈ جو ہمیں لگ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے؟ قسم ہے زمانے کی، ٹھیک ہے؟ اب اثر جو ہوتا ہے، ویسے تو نماز اثر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ زمانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ جو زمانہ ہوتا ہے کہ جو وقت ہوتا ہے،
ٹھیک ہے, وہی ہوتا ہے نا جو زمانہ ہم یہی کہتے ہیں پرانا زمانہ نیا زمانہ وغیرہ, ٹائم لائن جو ہماری ٹائم ہوتا ہے اس کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ اگر سپوز آپ لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا لیکن جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ وا جو ہے قسم والا ہے یا اور والا ہے نا, کوئی سوچ رہا ہے کہ نہیں؟ کسی نے نہیں سوچا, میری بات کا بس یقین کر لیا. بتائیں جی سسٹر فہمیدہ, آپ بتائیں. جی واقعی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ واو کے معنی اور ہیں لیکن یہ شروع میں آ رہا تو یہ کیا قسم کے معنی دے گا جب شروع میں آئے گا تو. اچھا, اس کی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے, انشاءاللہ مزید آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے, لیکن ابھی کے لیے یاد رکھ لیں کیسے پہچان ہوتی ہے. ایک تو یہ والا جو وا ہوتا ہے اس کے آگے کوئی نہ کوئی اسم آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہوتا ہے نا یہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہوتی ہے. ایک اس کی نشانی یہ ہے, ٹھیک ہے. ابھی کے لیے یاد رکھ لیں انشاءاللہ, جب جیسے اپنے کسی نوٹ بک پہ جیسے آپ کی بک ہے اس کے ساتھ لکھ لیں کہ یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہے, اس کے ساتھ یہ والی اگزامپلس بھی ہیں. والفجری واللیلی قرآن کی اگزامپلز ہیں, والنجمی والسمائی, سب میں یہ ایک بات آ رہی ہے نا, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, سارے یہ اسمائی کیسے پتہ چل رہا ہے, الف لام سے شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساروں کے نیچے جو بھی ہو رہا ہے وہ زیر آ رہی ہے. مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ آگے والے QCs میں ضرور کریں گے, لیکن ابھی کے لیے آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو آگے آ جاتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے یہ QC1 میں ہم صرف ایک چھوٹا سا جو ہے نا ٹپ آف دا آئس برگ جیسے ہوتا ہے, تھوڑا سا کچھ بتا دیتے ہیں آپ کے انٹرسٹ کے لیے. پھر آہستہ آہستہ جب آپ QC2 QC3 انشاءاللہ آگے جاتے ہیں, وہ آپ کی ساری جو مسٹریز ہوتی ہیں نا, جو سارے سوال ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پورے سالو ہوتے جاتے ہیں. پھر آپ کو مزہ آتا ہے, ہاں یہ تو ہم نے یہ بات تو پڑھی تھی, اچھا اس کی یہ پیچھے وہ تھی. تو یہ اس طرح انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھ لیا کریں, بعد میں انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے اثر کے معنی ہے زمانہ, اور یہ قرآن میں ایک دفعہ ہی ورڈ آیا ہے, اور اردو کی مثال سے کیسے یاد کر سکتے ہیں, عصر حاضر وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ گواہ ہے, یا جو ہو چکا ہے یعنی کہ شور ہے, آلریڈی ہو چکا ہے, یعنی کہ جو یا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ زمانہ ایک چل رہا ہے, آپ لوگوں نے بھی سپوز اس کو وٹنس کر رہے ہیں یا اس طرح, یعنی کہ شورلی جو چیز ہو گئی ہوتی ہے, جیسے ماضی میں کہتے ہیں وہ تو ہو چکا ہے نا, وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. تو کیا بات ہو رہی ہے کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے نا, زمانہ اس پہ گواہ ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی تاریخ گواہ ہے. یہ ہم لوگ اکثر اردو میں بولتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہوتا آ رہا ہے صدیوں سے وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ نے یاد رکھیں یہ تاریخ کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ شورلی جو پاسٹ ہے یعنی ہو چکا ہے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہماری سب سے اوتھینٹک کتاب کیا ہے, قرآن ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس میں اگر ہم شروع سے ٹائم لائن سے اپنی انسان کی دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن میں ساری جو ہے مختلف قوموں کی جو تاریخ ہے وہ بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے آپ لوگوں نے, اگر آپ لوگوں نے تفسیر وغیرہ پڑھی تو یا قرآن ویسے ہی پڑھا ہے, ترجمے کے ساتھ بھی ایون پڑھا ہے, تو اس کے اندر جتنی قومیں گزری تھیں ان سب کا حال بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا بات ہو رہی ہے, نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں اس کو ہم اکٹھا پھر اینڈ میں ملا کے پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر. ٹھیک ہے, یعنی کہ بے شک انسان کیا ہے, خسارے میں ہے. اب اس کا تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. انا کے معنی ہمیں یاد ہے نا, ہم نے یہ والا فریز یاد کیا تھا, وہ سلائیڈ یاد ہے آپ لوگوں کو جس کے اندر ڈفرینٹ ڈفرینٹ جی والصابرین. بالکل. تو ہم نے یہ ریفرنس فریز یاد کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ ہمیں یہ یاد رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہمیں تھوڑی سی ریویژن ہو گئی. پھر ہم نے کہا تھا ان کا مطلب ہے اگر, اور اس کا کیا ریفرنس فریز ہم نے یاد کیا تھا جی, یاد انشاءاللہ. انشاءاللہ. بالکل, یہ تو ہم بولتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ جو انسان ہے نا, الانسان, جیسے ہم نے کہا تھا نا الشیطان, تو یہاں پہ الانسان کیا ہے, یہ پوری جنس ہے انسان کی, یعنی کہ کوئی بھی اس میں سے ایکسکلوڈیڈ نہیں ہے. بات کیا ہو رہی ہے
کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بات کی, اسٹارٹ کیسے ہوئی بات, قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے, کس کی, زمانے کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے کہ تمام انسان جو ہیں, پوری, کوئی بھی اس میں سے ایکسکلوڈیڈ نہیں ہے, پوری جنس انسان کی جو ہے وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, آگے آتے ہیں, یعنی کہ خاص انسان, بنی نوع انسان, یعنی اس کی پوری جنس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ جو بات ہے کہ آپ لوگوں نے لا کے بارے میں ہم کچھ پڑھنے لگے ہیں, جیسے اس کا کیا مطلب ہے البتہ, اور للہ میں کیا مطلب تھا اللہ کے لیے. تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی کوئی ڈفرینٹ چیز پڑھنے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے البتہ, جیسے لقد کا کیا مطلب ہم نے کیا تھا البتہ تحقیق, یاد ہے نا آپ لوگوں کو, وہ اس میں کیا تھا ہم نے نماز والے آئی تھنک لیکچر میں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا, البتہ نماز شروع ہو چکی ہے, کھڑی ہو چکی ہے, وہ اس طرح کر کے ہم نے پڑھا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے لفی. اب یہ فی کیا تھا, اس سمے فعل ہے یا حرف ہے, کیا ہے یہ, جلدی سے بتائیں. حرف حرف ہے. ہاں بالکل. تو اب کیا بات ہو رہی ہے البتہ, یہ دیکھیں چھوٹا سا ورڈ سا بن گئی, ایسے لگ رہا ہے ون ہے لیکن یہ دو ٹکڑے ہیں, 1+1 لا اور فی. ٹھیک ہے, اب اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. ٹھیک ہو گیا, یہاں انڈیڈ کا مطلب تھا, اور قد کیا ہے حرف ہے یہ بھی. ٹھیک ہو گیا, یہ بہت اہم سلائیڈ ہے, اس کو ذرا غور سے آپ لوگ دیکھیں, یہ پورا سم اپ کیا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا, یعنی کہ لام جو ہے وہ اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اور حرف کے ساتھ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر سپوز یہاں پہ لا یا لیا اسم کے ساتھ آ رہا ہے, جیسے للہ ہم نے پڑھا تھا, یا لہو وغیرہ پڑھا تھا, لہو لہم, یہ ساری جو اٹیک زمائر تھی, یاد ہے نا, یہ اسمائی ہوتے ہیں نا, ہو ہم وغیرہ, کا یہ کم اور نا. ٹھیک ہو گیا, ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. جب اس کے ساتھ آتے ہیں زمائر کے ساتھ تو اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اور للہ ہی یہاں پہ ہم نے یہ والی اگزامپل دیکھی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا یہ, جیسے یہ ایک قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا لیدبروا. ٹھیک ہے, یہ قرآن کا ورڈ ہے, یعنی کہ یہ فعل ہے, فعل کے ساتھ لی آ رہا ہے, اس کے اندر تاکید آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تاکہ وہ غور کرے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد لیتذکر, یہاں پہ کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں اس پہ. ٹھیک ہو گیا, یہ فعل کے ساتھ ایگزامپلس تھی. اب حرف کے ساتھ کیا ہوتا ہے لقد, یعنی کہ قد کا کیا مطلب ہے البتہ تحقیق, یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, لفی کا کیا ہوتا ہے فی, یعنی البتہ تاکید وغیرہ. تو بیسیکلی یہ کس لیے یوز ہوتا ہے, تاکید کے لیے ہوتا ہے, یا ہم کبھی پوزیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ اسم کے ساتھ یوز ہو رہا ہے, پوزیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور مزید اس کے آگے جو آئیں گے آگے آگے وہ بھی دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے, یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں, بلکہ آپ لوگوں کو سلائیڈ بھیجی جائیں گی نا, اس کا اسکرین شاٹ لے لیے گا اور آپ کے سامنے رکھ کرے گا. ٹھیک ہو گیا, اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی, اب خسرن. اب یہ باجی سلائڈ کو دوبارہ دکھا دیں پریویس والی کو. کوئی مسئلہ نہیں سسٹر, آپ اس کو دوبارہ سے کر لیجئے گا, سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی پریشان نہ ہو. اچھا, کیا بات ہو رہی ہے جی, لفی خسر. اب کیا بات ہو رہی ہے البتہ کیا خسارے میں ہے. یہ خسرن سے یاد کریں, خسارے سے ملتا جلتا ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو خسارہ, گھاٹا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کہ اگر ہم لوگوں کی اصل پونجی ہی جس چیز سے ختم ہو جائے, لاس, ٹوٹل لاس. یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے سپوز کسی بزنس کے اندر کوئی آپ نے بزنس سٹارٹ کیا, اس میں انویسٹ کیا, جو آپ کی انیشیل آپ نے اس میں ڈالا تھا, یا جو سرمایہ آپ نے اس کے اندر لگایا تھا, وہ بھی لٹ جائے یا ختم ہو جائے, لاس ہو جائے, کچھ بھی نہ بچے, یعنی جو آپ نے انویسٹ کیا شروع میں وہ بھی نہ آپ کو واپس ملے, تو اس کو کیا کہتے ہیں ٹوٹل لاس. ٹھیک ہے, اب یعنی کیا بات ہو رہی ہے, بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے, اس پہ تاکید بھی آ گئی, اور کیا بات ہو رہی ہے ٹوٹل لاس میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب آپ نے یاد رکھنا اصل پونجی کیا تھی جو اس نے انویسٹ کیا تھا, بالکل کچھ بھی نہیں اس کے پاس بچا. ٹھیک ہے, اب آگے والی, اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور چیز دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ 4 بار تاکید ہے, 3 بار تو اسی میں آئی ہوئی ہے, اسی آیت میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا بات ہے والعصر, یہاں پہ قسم سے بات شروع ہوئی, یعنی کہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا. ہم قسم سے ایسے کہتے ہیں نا,
कसम से किसी बात को हमने बहुत ज्यादा करना, कसम से सही कह रही हूँ मैं, या कुछ इस टाइप का वो होता है, ठीक है। कसम, फिर उसके अंदर क्या है, बेशक, अलबत्ता, और ये बयान के अक्सरियत खसारे में है, यानी कि इंसान जो है वो लॉस में है। ठीक हो गया। ये सूरत हम लोगों के लिए क्या है, एक रिमाइंडर है, और ये हमारे लिए डरा देने वाली भी बात है कि इंसान जो है लॉस में है। ठीक है। ताकीद, कितनी दफा ये इन्ना जो है ये भी ताकीद के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हमने बात की थी लफी भी, और कसम जो है वो भी एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो फौरन क्या दुआ करनी चाहिए हमें इससे कि अल्लाह ताला हमें इस सारे से बचा ले। ठीक है। अब इसको हम जरा इमेजिन करें कि अल्लाह ताला क्या बात करें, किस तरह ये सूरत स्टार्ट हुई है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करें। अल्लिम और सिखाना भी है। आगे आ जाते हैं। अब क्या बात हो रही है, इल्ला। इल्ला का मतलब होता है सिवाय। अब कोई एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन के लिए यूज होता है ना इल्ला। ठीक है। सिवाय किसके, यानी जैसे यहाँ पे भी अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय किसके, अल्लाह के। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे अल्लाह जीना हमने कहाँ पढ़ा था, याद है आप लोगों को, सूरह फातिहा में पढ़ा था ना, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। ठीक है। तो हमने क्या कहा था, अल्लाह जीना जो है कनेक्टिंग वर्ड होता है, आयत को कनेक्ट कर रहा होता है। तो अब यहाँ क्या बात हो रही है, इल्लल्लजीना। अब यहाँ कोई एक्सेप्शन आ गई, कौन खसारे में नहीं है, सिवाय उनके जो। अब कौन जो है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। आमनु, ईमान लाए, जैसे हमारा फालू वगैरह था ना, तो इसी तरह आमनु होगा। ठीक है। ये फेल इंशाल्लाह आगे QC3 QC2 QC3 वगैरह में पढ़ेंगे। ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है कौन लोग जो हैं खसारे में नहीं है, जो बच गए हैं, कौन से लोग हैं, जो ईमान लाए और क्या किया उन्होंने। अब यहाँ पे ये देखें, और का क्या मतलब है, एंड। ठीक है। और भी यहाँ पे है, ये आपने याद रखना है, इसको थोड़ा और देखते हैं। आमन कैसे याद रख सकते हैं, ईमान मोमिन ये सारी चीजें उसे याद कर सकते हैं। ठीक है। इसका मीनिंग आपको याद रहेगा। वो आमिलू, मुझे जल्दी से कोई बताइए, आमिलू हमने कहाँ पे पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, माजी में। माजी में। और ये क्या इसका इशारा होगा, बताएं इसे सिर्फ उन सब ये राइट साइड पे होगा ना, राइट चार साइड उंगलियों का इशारा करके, हाँ, चार उन उंगलियों का इशारा। उन सब ने अमल किया। ठीक है। बात क्या हो रही है, उन सब ने अमल किया। ये देखिए हमारी जो हमने टेबल पढ़ा है उसमें से साथ ही कुरान में जब उसकी एप्लीकेशन भी आ गई है ना, और हमें फौरन कैसे पता चलेगा मीनिंग, फौरन इशारा करके देखें। उस वक्त वो वर्ड नहीं याद आ रहा, कम से कम उसका आप माजी पढ़ना शुरू कर दें, जैसे आमिला, आमिलू। ठीक है। मिल गया ना हमें, हमें पता चल गया अच्छा ये किसी मुजक्कर की बात हो रही है, कोई ज्यादा लोग थे, कोई जमा लोग थे, ऐसे पता चल गया ना। तो इस तरह कुरान पढ़ते हुए आप लोग जरूर किया करें इशारे, बड़ा मजा आता है, पता चलना शुरू हो जाते हैं चीजें। पूरा तर्जुमा अभी नहीं भी पता चलता, कम से कम कोई वर्ड बीच में से पता चल जाए, उसकी भी बहुत खुशी होती है। ऐसा है ना, करते हैं आप लोग ऐसे, नहीं करते, करते हैं, नहीं मैं वेरी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, अब क्या बात हो रही है, कौन लोग जो खसारे से बच गए हैं। एक नंबर 1 क्या था, जो ईमान लाए। ठीक है। दूसरा क्या था, वामिलुस्सॉलिहात। ठीक है। जिन्होंने अमल किए, कौन से अमल किए, नेक अस्सॉलिहात। ठीक है। और यानी कि सॉलिहात का ये मतलब है ना नेक अमाल। हम अक्सर ये भी दुआ करते होते हैं, सौले औलाद वगैरह इस तरह करके, तो उससे याद रहेगा। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। सॉलिहुन की जमा क्या थी, सॉलिहुना थी, वाऊन के साथ। अब यहाँ पे जब हमारे पास सॉलिहन और सॉलिहिन आ गया, तो उसकी क्या जमा बन गई थी, सॉलिहीना। ये हमने अपने 3rd या 4th लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है। इसी तरह अगर हम उसकी मुन्नस बना लें, गोलता लगा देंगे, सॉलिहतुन, और उसी की जमा सॉलिहातुन। अब ये जो लिखने का स्टाइल है ना, ऊपर खड़ी जबर लगी हुई है, तो इसका यही मतलब है, इसके बराबर होता है हा और अलिफ। ये दोनों, ये किताबत ऐसी है ना, यानी कि ये दोनों सेम है। ठीक है। सॉलिहात, तो क्या बात हो रही है, सिवाय उनके जो ईमान लाए और अमल किए नेक। ठीक है। आगे आ जाते हैं।
यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि यानी वो लोग नुकसान से बच गए हैं जो ईमान लाए और नेक काम किए, लेकिन ये अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, आगे भी आ रही है। उतनी देर हम यहाँ तक देख लेते हैं, ये हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहना है, अल्लाह ताला हमें जो है पक्का ईमान नसीब करें, ठीक है, ताकि हम खसारे से बच जाएं। और हमारे क्या ईमान थे, वो ईमान मुफस्सिल और मुजम्मिल वो जो होते हैं, याद है ना, यानी कि अल्लाह ताला पर, रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर और अच्छा बुरे होने पर, ये सब जो है अल्लाह ताला जो है हमारा पक्का ईमान करते हैं। और क्या हम वाकई इस बात पे यकीन करते हैं या ये रोने बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें पूरा अपने ऊपर तवक्कल और ईमान हमारा पुख्ता कर दे, ठीक है। प्लान क्या बनाना है, हम लोगों ने ईमान की मजबूती का प्लान बनाना है। कैसे, हमने अपने आप को ज़ाहिर है रिमाइंड करवाना है ना, ठीक है। तो कुरान और सुन्नत जो है वो हमारी गाइड है, उसको हम पढ़ेंगे, जितना करीब होंगे तो इंशाल्लाह हम लोग, याद दहानी होती रहती है जब इंसान की, तो वो अपने आप को कोशिश करता है, कोई ना कोई उसको कुछ गुड पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे प्लान है, और उसके बाद हमने तबलीग भी करनी है, सिखाना भी है, ठीक हो गया। फिर हमने और क्या दुआ मांगनी है, नेक अमाल करने के, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, ठीक है। इन्हीं नमाज रोजा वगैरह ये सारी चीजें, और इसका भी हमने इंशाल्लाह प्लान बनाना, ठीक है। इसको एक दफा पढ़ लें, अल्लिम, और सिखाना भी है। अच्छा जी, अब बाकी का पार्ट देख लेते हैं। अब पहली दो बातें तो हमें पता चल गई, जो नुकसान से बचने का क्या फॉर्मूला है, यानी कि जो लोग बचे होंगे, क्या था, ईमान हो जिनका, ठीक है, नेका माल करें। अब यहाँ बात आ गई है और एंड, ठीक है। अब ये उर्दू वाला ये नहीं है, और नहीं लिखा हुआ, या नहीं लिखा हुआ, बात हो रही है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें। थर्ड चीज थी ना, वतवासौ बिल हक़्क़ि, और एक दूसरे को वसीयत करें, वसीयत, वसीयत नहीं, ठीक है, एक दूसरे को क्या तलकीन या वसीयत, क्या वसीयत करनी है, हक की, यानी कि सच की, जो सही बात है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे एक दूसरे की बात कैसे आ गई, एक दूसरे वाला तर्जुमा किधर से आ गया, एक दूसरे को, ये कहाँ से आ रहा है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? अभी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्चुअली फेल जो होते हैं, हमने कहा था सौ से कि आया, जी 100 से आया वसीयत, मुझे आपकी 500। शुरू का जो ता है ना, अच्छा ठीक है, इसको हम देख भी लेते हैं। मैं आपको क्या बताने लगी हूँ कि जो हमारे होते हैं ना अफाल, हमने कहा था कि सेम सेम रूट लेटर्स होते हैं, लेकिन उसके हम डिफरेंट किस्म के अफाल बन जाते हैं, ऐसी बात हुई थी ना। तो यहाँ पे एक फेल हमारे पास था, दरसा, उसने पढ़ा, ठीक है, इन्हीं खुद से पढ़ा। फिर था दरसा, उसने पढ़ा, पढ़ाया, सॉरी, ठीक है। पहली बात क्या थी, ये दरसा का मतलब जो था, इस तरह का जो फेल आ रहा था, उसका क्या मतलब था, उसने पढ़ा। ये जो फेल आ रहा था दरसा, उसका क्या मतलब था, उसने पढ़ाया, ठीक है। और जब आ जाते ना ता से ये स्टार्ट हो रहा है, तदारसा, इस टाइप का जब इस साउंड का फेल आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है, उसमें क्या बात आ गई, बाहमी बात आ गई, म्यूचुअल बात आ गई कि एक दूसरे को पढ़ाया, ठीक है। तो इस तरह ये आप थोड़ा सा याद रख लें, दर्स से याद रख लें, दर्स तो हम याद रखते हैं ना, सबक दर्स वगैरह पढ़ने से स्टार्ट जहन में रख लें, ठीक है। तो ये वासव जो है ना, ये तदारसा, और ये देखें थोड़ा सा आगे देखें, जैसे अगर इसका सेकंड वाला जैसे होगा ना, फाला फालू ऐसे था ना, तो इस तरह करके याद के लिए तदारसा, तदारसू। अब ये आपको पता है ना, वाव अलिफ जो है ये जमा की निशानी होती है, याद है ना ये बात। तो इसमें भी देखिए ये जमा की ही निशानी है, तदारसू। अब इसी की साउंड जैसा तवासऊ, इस तरह करके बन रहा है, ठीक है। अभी इतनी डिटेल आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा सा सोचें आप इस बारे में, ठीक है, कि ये सेम सेम कोई ऐसी बात है, इस वजह से जो इस टाइप के फेल हुआ करेंगे, इंशाल्लाह हम QC3 में ये पढ़ेंगे, तो आपको तब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें बात क्या आ रही है, एक दूसरे को म्यूचुअल कोई चीज आ जाती है, ठीक है। तदारसू का क्या मतलब हो गया, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, ठीक है, इसका इशारा इस तरह करके होगा। और यहाँ पे क्या होगा, तवासौ, उन सब ने एक दूसरे को क्या की, वसीयत की, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा जहन में रख लेना है।
आगे आ जाते हैं। हक क्या होते हैं? सच को कहते हैं, ठीक है। और कहाँ से मिलता है हमें हक? कुरान और सुन्नत से मिलता है, ठीक है। कहाँ से हमें सच मिलता है? कुरान और सुन्नत से। ऐसी बात ही है ना, यानी कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमें सारी तफसीलें बताई हुई हैं, अंबिया के बारे में बताई हुई हैं। उसके अलावा ये बताया हुआ कि किस तरह उन्होंने सब्र किया, एक दूसरे को किस तरह सब्र की तलकीन की और हक की बात की, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक सोचने वाला पॉइंट क्या उन्होंने हमें बताया हुआ है, सारी जिंदगी हमने कैसे गुजार दी है कुरान को ना समझ के, पता ही नहीं था हमें कुरान में है क्या, है ना। ऐसा ही है ना, बस थोड़ा बहुत सुन लिया, चलो जी सूरह रहमान सुन ली, सूरह यासीन थोड़ी सी सुन ली, बस। और कुछ पता तो नहीं है ना, हमें नहीं ना पता था क्या उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। मोस्टली हम लोगों का ये हाल है, हो सकता है माशाल्लाह आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक वो जो उसकी जिस्ट होती है, जो एक आप समझ लें जो उसके अंदर हीरे और वो छुपे हुए हैं, वो तो नहीं ना हमें पता इतनी डेप्थ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पहला कदम लिया, अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और आसानियां करें इंशाल्लाह। तो बात क्या हो रही है? कुरान समझेंगे तो हमें पता चलेगा हक क्या है, ठीक है ना, ऐसा ही है। फिर उसके बाद क्या बात हो रही है? सबर की। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है किस चीज की वसीयत करनी है और किस क्या कहना है एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे को वसीयत करें किस चीज की? हक की, और दूसरी क्या चीज है? सबर की, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ये वाह लिखा हुआ है, एंड, ठीक है। यहाँ पे भी एंड लिखा हुआ है, ये वाह का मतलब है एंड, ठीक हो गया। अब क्या बात हो रही है? सब्र, यानी सब्र क्या होता है? सब्र का मतलब होता है कोई साबित कदमी हो, जैसे भी हालात हो थोड़ा साबित कदम रहना, अल्लाह पे यकीन रखना, डटे रहना, ठीक है। मुस्तकिल मिजाजी वगैरह इसके अंदर कवर हो जाती है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ना उन्होंने क्या कि 3 पॉइंट्स बना दिए, सब्र किस किस उसके ऊपर करना होता है हमें। सबसे पहले उन्होंने कहा नेकी के सब्र। इसकी कोई एग्जाम्पल आप लोगों के जहन में है? कोई एक सिस्टर हैंड रेज करके बताएं जी, कौन बता रहा है क्या होता है नेकी पे सब्र? वरना तो हमने ये सुना हुआ ना, मुश्किल वक्त है तो सब्र करें। जी सिस्टर इरम आप बताएं। नेक अमाल पर साबित कदम रहना और मतलब ये नहीं समझना कि ये मेरी वजह से हुआ, ये सब अल्लाह की दी हुई तौफीक की वजह से हुआ। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, नेकी पे सब्र क्या इसमें तो, इसमें क्या सब्र हो सकता है? नेकी करके कैसा सब्र, क्या मतलब? यानी कि दूसरों से तवक्कुआत न रखी जाए ना कि वो भी हमारे साथ ऐसा मामला करेंगे अगर आपने किसी के साथ नेकी की है तो। ठीक है, एक ही पॉइंट भी आ गया। और दूसरा आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह भी आप इसको सोच सकते हैं कि जैसे अगर हमने किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, पैसे देना अपनी किसी अच्छी प्यारी चीज से, एक वो अल्लाह की राह में देना, कोई रिटर्न की वो ना रखना, ये भी सब्र ही होता है ना। नेकी करके उस पर सब्र करना कि मुश्किल तो लग रहा है लेकिन फिर भी देना, ज़कात देना वगैरह, ये सारी चीजें। वैसे तो ये हमारे फराइज हैं, लेकिन स्टिल जैसे नमाज पढ़ने के लिए हम उठते हैं, वो भी सब्र करके कि अपने शैतान को हावी नहीं होने देना और सब्र करना है और नमाज पढ़नी है, ऐसा ही है ना। तो नेकी पे सब्र, इसके आप लोग और भी सिनेरियो सोच सकते हैं, ठीक है। पहले जो मैं जी नेकी देखिए करके किसी को जताना नेकी नहीं। नेकी हाँ करने बिल्कुल, के वो लिए वो सारी चीजें भी ठीक है सब्र का, लेकिन नेकी यहाँ पे क्या मतलब है? अपने नफ्स पे कंट्रोल करना, ठीक है। और डटे नेकी रहना, करने ये के नहीं कि लिए अच्छा दूं ना दूं फिर एंड में नहीं दिया, सब्र करना है, नेकी ठीक है। उसके अलावा और क्या बात हो सकती है? और एक दूसरे को कैसे तलकीन कर सकते हैं, उसमें कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आ रही है? एक दूसरे को अगर हम कहीं सब्र करो, आगे से क्या कहना है उसने कि बोली जाओ मुझे ना सब्र का कहो। ऐसा होता है ना कि किसी को खुदा ना खास्ता मुश्किल आ जाती है, तो उसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। कई दफा इतना ज्यादा जैसे इंसान को इतना परेशान और हरासा हो जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आती, कुछ अजीब अजीब बातें भी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या हमारी क्या ड्यूटी है कि हमने उसको अच्छे प्रॉपरली, ये नहीं कि बगैर हिकमत के, हमने उस हिकमत के साथ उसको थोड़ा सा समझाना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक फॉर्मूला है, किससे बचने का? खसारे से बचने का, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद क्या बात हो रही है? सब्र किस चीज पे होता है? गुनाहों से बचने पर सब्र करना, ठीक है। कोई हमें बड़ा इंटरेस्टिंग, कोई बहुत ही अच्छा लग रहा हो, कोई चीज बहुत दिल कर रहा हो, लेकिन हमने क्या करना है? सब्र करना है कि नहीं, ये हमने नहीं करना, अल्लाह की खातिर नहीं करना हमने, ठीक है।
फिर उसके बाद थर्ड वाली बात क्या है, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बात हो सकती है, कोई ट्रेजिडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस पर भी सब्र करना। और इसके अंदर एक बात थी कि ये नहीं कि पहले तो बहुत रो लिया, ववेला मचाया, आसमान सर पे उठा ले, लेकिन एंड में जो है वो चुप करके अच्छा चलो जी सब्र करो। नहीं, ऐसे नहीं। सब्र क्या होता है, पहली चोट पे जो हम वो करते हैं ना, रिएक्ट, वो होता है। ठीक है, उस पे हमें सब्र करना। ठीक है, अल्लाह ताला हमें मुश्किलात से बचाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला मुझे हक पहचानने की तौफीक दे। ठीक है, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने की वो दे, और एहतिसाब करने के हम लोग किधर हैं, हम हमारा क्या किस वक्त कहाँ स्टैंड हो रहा है। ठीक है, अपना खुद आपने क्या लेना है, जायजा लेना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद प्लान बनाना है इंशाल्लाह। और क्या प्लान बनाना है कि हम लोग जो है एक सेकेंड रुकिए जी। तो हमने क्या प्लान बनाना है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह जुड़े रह सकते हैं, हमें रिमाइंडर मिलते रहे, किस तरह हम कर सकते हैं। तो कंपनी भी हमने अच्छी करनी है अपनी। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है। ठीक है, और अमले साले काफी नहीं। कौन कौन सी चीजें थी, 1 2 हमने बात की थी ना, एंड की बात हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र, ये भी, यानी कि बाहमी चीज आ गई। ठीक है, तो हमारे ऊपर 2 हमारे से रिलेटेड बातें हैं, और 2 किससे रिलेटेड है बताएं। तवासी बिल हक क्या है, म्यूचुअल बातें। तो क्या बात आ गई, सोसाइटी से रिलेटेड। माशरे। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हम ये 4 बातें करेंगे ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बातें हैं, कोई एक नहीं, एंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये 4 चीजें होंगी तो ही हम बच सकेंगे, 4 शराइत पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बात लिखी है, गलत तस्वीर के अल्लाह ताला का वली वो है। हाँ, ये देखिए, ये हम कितना अक्सर यहाँ हमारे माशरे में वाकई ये बात होती है, जो बस अपने काम से काम रखता है, जो किसी के लेने में ना हो ना देने में हो, वो अल्लाह का वली है। ऐसा होता है ना, जो मलंग टाइप का बंदा हो, हम कहिए तो बिल्कुल ही जो है बहुत ही वली हो गया, ऐसे नहीं होना। बल्कि हमें क्या बात पता चली है, 4 चीजें पता चली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, इज्तिमाइयत का तस्वुर, यानी कि टुगेदरनेस का। ठीक हो गया, तो इसमें क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम शुरू से कहते हैं कि आप लोग अपना साथी चुन लें, क्लास में से सुन लें। ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट किया करें, सब्र की फजीलत बताएं, आपस में हम इंशाल्लाह एक दूसरे को याद करवाते रहेंगे ना, तो याद रहेगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो सिस्टर नौरीन है हमारी, मेरी और आप सबकी, तो हम लोग QC1 से माशाल्लाह साथ हैं, और हम अक्सर जो है ना एक दूसरे को कोई एक जरा सा थोड़ा सा इधर ना एक दूसरे को याद करवाते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। आप लोग भी अपने साथी चुने, और जरूर इस तरह इकट्ठे भी पढ़ें, ताकि जो है कुरान से हमारा ताल्लुक जो है याद दहानी भी होती रहे और जुड़े भी रहे इंशाल्लाह। कोई एक जितना जो है ट्रैक से हटने लगता है, दूसरा याद करवा देता है। ठीक है, तो इसमें कोई कमाल हमारा नहीं है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करनी है कोई साथी ढूंढ लें, घर में से किसी को अपने साथ QC करा लें, कुछ जैसे आपको सही लगता है, आसान लगता है। ठीक है, आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी सारी बहनें हैं, इतना अच्छा ग्रुप में काम करते हैं, उनमें से किसी एक को चुन लें। ठीक हो गया, फिर उसके बाद क्या बात हो रही है जी, ये बात जो मैं कह रही थी ना, वाह की इसका मतलब है और, यानी कि एंड। अगर होता आउ, इसका मतलब होता है या, तो कोई चॉइस नहीं ना हमारे पास। हमें यहाँ पे कहा कि 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इकट्ठी, एंड जैसे हम कहते हैं ना, सपोज बच्चे जिद कर रहे होते हैं मुझे आइसक्रीम चाहिए, उसके अंदर सपोज स्ट्रॉबेरी भी होनी चाहिए, और उसकी जो है ठंडी भी होनी चाहिए, और जो है ना ब्लू कलर की कप में होनी चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे इस टाइप की जिद करते हैं, तो वो भी कोई उसके अंदर एक चीज भी कम होगी वो रोना डाल देंगे। ठीक है, तो ये अपने लिए एक एग्जाम्पल जो है याद रख ले, एंड वाली। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात हुई है, या और ओके। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमने सिखाना है आपने, इसको अच्छी तरह से एक दफा पढ़े,
पूरी सूरत को जहन में लाएं, ये पढ़ें, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है अल्लाह ताला ने हमें के लिए, ठीक है। और ये किसका फायदा है? हमारा अपना फायदा है। और हम लोग ये कह सकते हैं वन लाइनर इसका जो खुलासा, जैसे हम हर सूरत का कहते हैं ना, इसका क्या है? ये मुकम्मल खसारे यानी कि टोटल लॉस से बचने का फॉर्मूला अल्लाह ताला ने हमें इतनी छोटी मुन्नी सी सूरत में बता दिया, ठीक है। चलिए जी 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो इतनी देर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा हमने वो तो देखा ही नहीं, 4 बातें कौन कौन सी थी? 4 दफा ताकीद किस चीज के बारे में की गई थी? उस स्लाइड पे आ जाए एक दफा। कहाँ गई ये? ठीक है, 4 बार ताकीद थी। एक तो ये हमारा वल असर में हो गया, इन्ना में हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? लफी में हो गया। फिर आगे आ जाते हैं। फिर ये इल्ला जो है ना, ये इल्ला जब यूज होता है ना, जैसे हमने कोई एक्सेप्शन बतानी हो, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि सारी क्लास पास हो गई है, ठीक है, 100 बच्चों की क्लास थी सपोज, वो सारी पास हो गई सिवाय 4 बच्चों के, ऐसा, ठीक है। ऐसे ही बताते हैं ना, जो कम तादाद में होती है उसको इल्ला या सिवाय के साथ हम बताते हैं सिवाय। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना सारी क्लास फेल हो गई है, सिर्फ जो है, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे 4 बच्चे जो हैं सिर्फ वो फेल हुए हैं, इस तरह करके छोटे उसको तो नहीं ना करेंगे, यानी कि सब फेल हो गए हैं। फेल कौन हुए होंगे? 4 लोग, लेकिन बाकी पास हो गए हैं 96 लोग। ऐसे तो नहीं करते ना, हम जो ज्यादा तादाद हो पहले उसको बताते हैं और उसी से करते हैं। एक्सेप्शन जो होती है वो कम वाली चीज होती है, ऐसा ही है ना। तो इल्ला क्या है? ये भी ताकीद है, ठीक है, एम्फेसाइज करे ये बात को। ठीक हो गया? समझ आ गया इस चीज की, इस पॉइंट की समझ आ गया? नहीं आई? आप लोग हैं मेरे साथ? जी ये समझ आ बिल्कुल हैं, आगे समझ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम ऐसा कहते हैं 14B स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ गया मेरा 14B? ये आ गया, ठीक है। तो आज हमने ग्रामर में अपने बाकी के फेल मुदारे पढ़ने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक स्लाइड आएगी उस पर मैं आपको बड़े मजे की बात भी बताऊंगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? टीपीआई के जरिए करना है। क्या होती है टीपीआई? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए। कैसे बताते हैं? हम इशारे कर करके बताते हैं, ऐसा हुआ हूँ, अंता आना वगैरह, ठीक है। और कैसे करनी? दिल से करना है और इकट्ठे करना है मिलके। तो आज हमने इस बारे में क्या बात पढ़ी है? तवासी बिल हक, और क्या पढ़ी है? तवासी बिल सब्र, ठीक है। उर्दू में ये वर्ड्स हमने 2 देखे हैं, ठीक है। तो मिलकर करना है हमने, ये ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। ये बताया था ना डॉक्टर साहब ने, बड़ा अच्छा रिसर्च करके ये पूरा बनाया हुआ है, ठीक हो गया कोर्स जो है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अल्फाज की एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे ख्याल से तो बड़ी अच्छी तरह से आ चुकी हैं। इसम होता है फेल, इसम और फेल में अगर मैं आपसे फर्क पूछूं तो क्या फर्क बताएंगे आप? कोई फर्क आता है आपको कि नहीं आता? ये तो निशानियां है, ये तो ठीक है, लेकिन वैसे इसम कंसेप्चुअली में जमाना नहीं पाया जाता, इसम में जमाना नहीं पाया जाता, फेल में जमाना पाया जाता है। जी बिल्कुल, सिस्टर कुलसूम ने बताया हमें, बिल्कुल माशाल्लाह, एक्सीलेंट। यही फर्क है, इसमें जमाना होता है फेल में, और इस समय कोई जमाना नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अरबी में हमने ये देख लिया था 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं हमारे अफाल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, ग्रुप में भी बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फेल माजी क्या होता है? जो हो गया परफेक्ट टेंस, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। माजी यही होता है ना, कोई हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। मुतारे क्या होता है? जो हो रहा है, होगा, ये यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक हो गया। और अमर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जल्दी। अब यहाँ पे हमने देखा था, ये अभी आपने देख लिया। वैसे तो अच्छी तरह के माजी की कहाँ चेंज होता है? एंड पे, मुदारे के शुरू में, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये वाली स्लाइड देखें,
यहाँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है अभी मैं आपको बताती हूँ। हमने कहा था कि फतह यफ्ताहु, हमने देखा था कि इन सब के जो थे माजी वो तो सेम थे, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें जेर आ गई थी, लेकिन ये सबके सेम लग रहे हैं ना। फतह तीनों पे जबर है, नासारा तीनों पे जबर है, पता नहीं चल सकता कौन से सेट से। दौराबा, ठीक है। और इसके सेट्स का हम कैसे नाम दिया था, हमने कहा था ये पहला सेट जो है फा है फतह से, नून जो है नासारा से, दौर जो है दौराबा से, और सीन जो है समिया से। ऐसे ही है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिस्टर नौरीन भी आज आपको बता रही थी कि आपने ये दोनों इकट्ठे इस तरह से याद करने हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए अगर आप करेंगे ना फतह यफ्ताहु, ठीक है, यानी इसके अंदर यहाँ पे जो है जबर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह इसका चेंज होगा। अब ये आप ये नहीं कर सकते कि इसमें यफ्ती हूँ यहाँ जेर लगा दें यहाँ पेश लगा लें, ऐसा नहीं है। जैसे ये जुबान में इस लैंग्वेज में ये यूज हुए हैं, जैसे कुरान में आए हैं, ये उस इसको चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं जेरे जबरे डाल दें, ठीक है। तो क्या है फतह यफ्ताहु। और इस जैसे कौन कौन से अफाल थे जल्दी से मुझे बताएं, कौन से पढ़े अभी हमने, कितने पढ़े थे फतह वाले सेट में? 3। कौन कौन से थे, कौन बताएगा? हैंड रेज कर सिस्टर। जाला, ठीक है, फाला, जाला और फतह, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, फतह। ठीक हो गया, ठीक है। अब ये आप जाइला नहीं कर सकते, जुइला नहीं आपने करना कुछ, यानी अपने पास से इस पे हरकत नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फाला फतह की तरह ही होगा, सॉरी। और फतह का मुदारे क्या बनेगा, जैसे ये यफ्ता हुआ है तो क्या बनेगा बताएं, कौन बताएगा मुदारे क्या होगा? यफअलु, यफअलु। हाँ ठीक है, यफअलु, ठीक है। इसी तरह जाअला का यजअलु, ठीक हो गया। तो यानी कि जो सारे इस पैटर्न जैसे बनेंगे, ठीक है। इसको हम अबवाब भी कहते हैं, ये जो 4 है, ठीक है। इसको फा नून दौद और सीन, इसको बाब भी कह देते हैं, बाब या अबवाब, दरवाजे जो होते हैं, ठीक है। या इसको पैटर्न भी कह देते हैं, या नमूने भी कह देते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ नमूने, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं ये 4 किस्म के नमूने होते हैं जिसके ऊपर हमारे अफाल आ रहे होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं नासारा के अंदर क्या खास बात थी? हमने कहा था ये पेश इसको बहुत पसंद होती है या दौमा बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो हम कहते होते हैं कि नासारा जो है पेश फ्रेंडली वाला फेल है, ये याद रखने के लिए टिप है, ठीक है। जैसे नासारा, और उसका कैसे हमें पता चलेगा? यंसुरु, नासारा यंसुरु। और इससे से कौन से अफाल पढ़े थे सिस्टर किरण बताएंगी, चलें सिस्टर किरण चलें बताएं कौन कौन सी थी? नासरा, हालाका, आला का, वेरी गुड। और आबादा, ज़करा, आबादा भी था, अबदा, आबादा था, और ज़करा, ठीक है, ये सारे थे, वेरी गुड, ठीक है। तो यानी कि खौला का क्या क्या मुदारे बनेगा? सेम सेम ऐसा ही होता है ना। खौला का क्या बनता है उसका मुदारे? यखलुकु। यखलुकु, वेरी गुड। यखलुकु, हाँ हाँ, आबादा का क्या बनेगा? आबादा याबुदु, याबुदु। हाँ। और इसी याबुदु, हाँ, तो फतह जैसा, फतह यफ्ताहु जैसा तो नहीं है ना, उसमें तो पेश आ रही है, वो तो नसर और यंसुरु जैसा है, नसर और यंसुरु, फतह यफ्ताहु, ठीक है, इस तरह था। अब नसरा में कौन कौन से थे? नसरा की तरह का ज़करा, क्या बनेगा इसका? यस्कुरु। यस्कुरु, यस्कुरु, ठीक है। अब यस्कुरु यस्कुरु ही रहना है, ठीक है, यस्कुरु। आप ये नहीं कर सकते कि इसको इस तरह का बना लें, यस करूँ कुछ इस तरह का बना लें, वो तो वैसे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना, अजीब सा लग रहा है। क्योंकि माशाल्लाह कुरान तो आप लोग पढ़ते रहते हैं, तो एक कोई अजीब सी चीज आ जाएगी तो आप कहेंगे ये क्या आ गया, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, कभी सुना भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह दाराबा में कोई पढ़ा था हमने फेल? और नहीं, दाराबा का सिर्फ एक ही पढ़ा था। और इसकी क्या खास बात थी? इसके मुदारे में जेर आ रही है, ठीक है। और सामिया का क्या खास बात थी? उसके माजी में ही चेंज आ रहा है, ठीक है, माजी में क्या है? समिया यस्माउ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर हम सिर्फ मुदारे याद कर लें, हम कहें नहीं हमने माजी नहीं याद करना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यफ्ताहु यस्माउ, ये तो सेम सेम लग रहा है ना। तो इसीलिए पेयर्स में याद करना है हमने, ठीक है। जैसे समिया यस्माउ, और इस तरह का और कौन से पढ़े थे समिया बाब में?
कौन से फेल पढ़े थे? और आलिमा, हालिमा, आलिमा, अमीला, वेरी गुड, अमीला, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आलिमा का क्या बन जाएगा फिर? यालमु, ठीक है। और आमिला का क्या? यालमु, यामलु, यामिलु, ठीक हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 4 सेट्स हैं, ठीक है। और हमने कितने टेबल QC1 में किया? आप लोगों को आने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 11 टेबल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 11। हाँ, और इसको हमने कितने सेट्स में डिवाइड किया है? 4 सेट्स में किया है, ठीक है। और इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? इसका एक छोटा सा ना मजे मजे का वो एक है, सेंटेंस है, ठीक है। ये दोबारा भी हम दोहराएंगे इंशाल्लाह। तो इसको हमने कैसे याद किया था? अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समी, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों ने याद करना है। आप लोगों को इंशाल्लाह ये 4 फिर जो होंगे ना, आप कहेंगे अबवाब ये तो बड़े इजी हैं, हमेशा आप ये वाली फ्रेज को याद करेंगे। कुरान दोबारा खोलो बता देंगे। फतह, ठीक है, सुन लें। कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा, ठीक है। नासारा का मतलब क्या था? उसने मदद की, ठीक है। तो इस तरह हमने बना लिया, कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समिया, ठीक है। ये इंशाल्लाह मजीद आपको पता चलेगा ये इस तरह इसम वाले उसमें स्टाइल में क्यों करें, उसने खोला, उसने मदद की, इस तरह क्यों नहीं करे। अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखें, इंशाल्लाह आगे जाके आपके सारे क्वेश्चंस की आपको जवाब भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, याद हो जाएगा इंशाल्लाह, हम इसको बहुत दोहराएंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। दाराबा, अब यदरिबू हमने जो आज पढ़ना था, उसकी खास बात अभी मैंने बताई दी है कि उसमें मुदारे में जेर आ रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माजी में क्या था? 1 वाले उस पे जबर थी, दूसरे पे भी जबर थी और तीसरे पे भी जबर थी, ठीक है। लेकिन मुदारे के अंदर क्या हुआ? यहाँ पे जेर आ गई, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसको इसी तरह से याद रखें, दाराबा यदरिबू, दाराबा यदरिबू, 5-6 दफा दोहराएं, आपको पक्का पक्का हो जाएगा, ठीक है। एक दफा मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग पढ़े। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं, ठीक है। तो ये कौन पढ़ेगा? कोई एक सिस्टर हैंड रेज कर लीजिए जी। कौन है? सिस्टर उस्मा, चले आप पढ़े जी। यदरिबू, यदरिबूना, ठीक है, तर्जुमा भी पढ़े साथ। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू तुम मारते हो, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हो, नदरिबू हम मारते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जो आपने देखा, आपको एक जब याद हो जाएगा ना फर्स्ट वाला ही, तो बाकी तो हमने जमा बनाई हुई है, वही उसके अंदर सीन चल रहा है। यानी कि पहले तो जो थे वो या वाली अलामत आ गई थी, हमने कहा था ना अलामत मुदारे से याद रखेंगे, एक में ता की आ गई, एक में अपने वाली हमजा की आ गई, फिर ये जमा वाला हो गया। और नदरी बूना नहीं हमने करना, हमने क्या करना है, नदरीबू, जैसे अदरीबू था या जैसे तदरीबू था, इसी तरह नदरीबू नाहनु वाले से याद रख लेना है, ठीक है। तो आपको एक याद हो जाए ना, जब दौराबा यदरिबू, पूरी गर्दान ही याद करने की आपको जरूरत पड़नी ही नहीं है। जी सिस्टर सीमा, आपका कोई सवाल है तो पूछ ले। नहीं बाजी, प्रैक्टिस के लिए हाथ उठाया था। चलिए आप ये मेरे साथ करें, ठीक है। हल यदरिबू, क्या मतलब है इसका? क्या वो मारता है? ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? मारता है, वो मारे, क्या वो मारता है? ला यदरिबू, नहीं वो नहीं मारता है। ठीक है। हमने इसमें क्या चीज रिवाइज की कि माजी की नफी तो हमने पढ़ा था मा से होगी, ठीक है, और मुदारे की नफी किससे होगी? ला से होगी, ठीक हो गया। अमूमन यही रूल है, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो वो तब देखेंगे, अभी नहीं आ रही कोई एक्सेप्शन, ठीक है। चले,
आगे हल यद्रिबूना, क्या वो सब मारते हैं? ला यदरिबून, नहीं वो सब नहीं मारते हैं। हल तद्रिबू, क्या आप क्या मारते हैं? आप मारते हैं? ला अदरिबू, नहीं मैं नहीं मारता। हल तद्रिबूना, क्या आप सब मारते हैं? क्या आप सब मारते हैं? ला नदरिबू, नहीं हम सब नहीं मारते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे और क्या बात हम रिवाइज कर लेते हैं। यद्रिबू का जवाब यानी कि थर्ड पर्सन का वाहिद और जमा का जवाब, ठीक है, वाहिद और जमा का जवाब किससे देने, सेम सेम होता है, सवाल में ही जवाब होता है, ठीक है। और लेकिन तद्रिबू जब अगर सामने वाले से बात कर रहे होंगे तो वो इसी तरह जवाब देते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या नाम है आपका, तो वो आपको यही बताएगा मेरा नाम, इस तरह, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं क्या तुम मारते हो, तो आप यही कहेंगे नहीं मैं नहीं मारता, ठीक हो गया। तो तद्रिबू का जवाब किससे देना है, अद्रिबू से देना है। तद्रिबूना का जवाब किससे देंगे, नाहनु वाले से। जैसे अंतुम का जवाब कैसे देते होते थे, नाहनु से देते थे ना, इसी तरह सेम से मैं तद्रिबूना का जवाब किससे देंगे, नद्रिबू से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वही बात आ गई जो हम रोज पढ़ते हैं, हामिदुन, ठीक है, ये इसकी असली हालत है पेश वाली। और लेकिन जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको मार पड़ी होगी, तो उसके ऊपर हमने दो जबर लगा देंगे, ठीक हो गया। जैसे ये हल ये त्रिभु हामिदन, ये मुझे इसका तर्जुमा कौन बताएगा जी, सिस्टर कौन बताएगा, मैं सिलेक्ट करती हूँ ना जरा। सिस्टर रुबीना आप बताएं, क्या मतलब है इस सवाल का, जरा ट्रांसलेट करके मुझे बताएं। हल हल, यद्रिबू, हल क्या, यद्रिबू वो मारता है, हामिदन हामिद को, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ला तो जवाब भी आप ला साथ ही दें। ला यद्रिबू हामिदन, नहीं वो हामिद को नहीं मारता। हल यद्रिबूना हामिदन, क्या वो सब मारते हैं हामिद को? क्या वो सब मारते हैं हामिद को? ला यद्रिबूना हामिदन, नहीं वो सब हामिद को नहीं मारते। ठीक हो गया। हल हल, तद्रिबू हामिदन, क्या आप मारते हैं हामिद को? ला अद्रिबू हामिदन, नहीं हम नहीं मारते नहीं नहीं, हामिद ये को। देखिए मेरी बात सुने, ये नहीं तो मैं सिंगुलर नहीं है ना, मारता। ये देखिए ये तो सिंगल है। क्या जी तुम मारते हो हामिद को, तुम कह लेना आप, फिर नहीं ला कंफ्यूज होना। अद्रिबू, नहीं मैं नहीं मारता हामिद हाँ को। ठीक है, इसको इस हल तरह से। तद्रिबूना हामिदन, क्या आप मारते हैं हामिद को? ला नद्रिबू हामिदन, नहीं हम नहीं मारते हामिद को। ठीक है, साथ साथ इशारे भी क्या करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तदरीबू, अदरीबू, तुम और यानी मैं, ठीक है। इशारे करेंगे ना इंशाल्लाह, फिर आपको कम चांस होते हैं गलती के, ठीक है। ये वही वाली बात आ गई, हमने इसमें से दौराबा का भी कर लिया मुदारे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब हम समिया को देख लेते हैं। और दराबा में हमने और कोई मजीद पढ़ा नहीं है, तो इसमें एक ही है। अब ये देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन पढ़ेगा, कौन अच्छा बच्चा पढ़ेगा, ये हैंड रेस कर लें जी। सिस्टर कुलसूम पढ़े, चलिए। समेआ वो सुनता है या आप ऐसा सुनेगा। करें मुदारे से पढ़े, यस्माउ, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा। यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। तस्माउ आप सुनते हैं। अस्माउ मैं सुनता हूँ। तस्माऊना आप सब सुनते हैं। नस्माउ हम सब सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह से याद रखना है, समिया यस्माउ, समिया यस्माउ। ये जो सारे बात बताए ना, इसको इसी तरह दोहराएं, फतह यफ्तहु नसर यंसुरु दरबा यदरिबु समिया यस्माउ। इस तरह बहुत ज्यादा आपने दोहराना है, ठीक है, ताकि उसकी साउंड जो है दिमाग को याद हो जाए। साथ इशारे जरूर करने, ठीक है। फर्स्ट पेयर ऐसे याद करें। फिर क्या करना है आपने, पहले माजी का पूरा टेबल पढ़ लेना है, फिर उसके बाद मुदारे का टेबल पढ़ लेना है। अब माजी और मुदारे मिक्स करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए पहले सारा पेयर्स ऐसे ही याद करें, समिया यस्मा, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरी माजी की पढ़े इशारों के साथ, फिर मुदारे की पढ़े, फिर इंशाल्लाह पक्का पक्का हो जाएगा आपको, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं जी। ये कौन करेगा, ये अभी किसी सिस्टर का हैंड रेस था, सिस्टर इरम का, चलें आप मेरे साथ करवाएं। माजा यस्माउ, माजा का क्या मतलब है, वो क्या? क्या सुन रहा है। हाँ, हम लोगों ने एक और वर्ड भी किया था ना, मादा क्या। हाँ, माँ के साथ क्या था, कहाँ यूज किया था, याद है कुछ? सवाल करने के लिए माँ मा, यूज किया था ना, क्या इसकी माजी में
جی نہیں، ماضی میں نہیں، ہم نے پڑھا تھا نا، اس کی اگزامپل پڑھی تھی شروع میں، ہم نے اس کا بھی ترجمہ کیا کیا تھا، کیا ایسے یاد ہے نا؟ تو اس کے ساتھ کیا سوال یاد کیا تھا؟ وہ ہم کہتے ہیں قبر کا سوال بھی ہوتا ہے، کیا تھا وہ؟ ماں دینوں کا ماں دینو کا فار ماں ایگزامپل ہم نے وہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ماں کا دینو ہمارا کا. ہاں تو کوئی رول آپ کو سمجھ آ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے ماں دینو کا؟ جی کیا ہے تمہارا دین؟ ہاں، لیکن یہاں پہ کیوں اب یہاں ماضا کا بھی تو مطلب کیا ہی ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی ہمیں زا ساتھ ایکسٹرا لگانے کی؟ دیکھیں یہاں پہ جو تھا ماں، اور یہاں پہ یہ اسم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے نا، دین، دین اسم ہے، ٹھیک ہے، دینن ہوگا فار ایگزامپل، یا دینو کا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم تھا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ماضا جو ہے وہ فعل کے ساتھ سوال کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے، ماں کس کے ساتھ تھا؟ اسم کے ساتھ سوال کرنے کے لیے یوز ہو رہا تھا، ٹھیک ہو گیا. تو اب کر لیتے ہیں ماذا یسمعو، کیا وہ سنتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے سسٹر ارم؟ یسمع القرآن، ہاں وہ ہم نے قرآن یہ پوچھا تھا وہ کیا سنتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا جواب دیے؟ وہ کیا سنتا ہے؟ یسمع القرآن، قرآن، وہ ٹھیک ہے، یہ ضرور بولا کرے نا تاکہ پھر لکھنے میں بھی آسانی ہو. یعنی اب وہ سن کیا رہا ہے؟ یہاں پہ زبر کے ساتھ آ گئی نا وہ چیز، یہ کیا بن گیا تھا؟ آبجیکٹ بن گیا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا وہ سنتا ہے، کیا سنتا ہے؟ قرآن، ٹھیک ہو گیا. اب یہ والا بتائیں ماذا یسمعون، وہ یسمعون القرآن، سوری ٹھیک میں اس کے لیے وہ ترجمہ، ٹھیک ہے، وہ سب سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ یسمعون القرآن، ٹھیک ہے، ماذا تسمعون، آپ کیا سنتے ہیں؟ ہوں اسمع القرآن، ٹھیک ہے، میں قرآن سنتا ہوں، ٹھیک سن ہے، رہا ہوں. ٹھیک ہے، ماذا تسمعون، آپ سب کیا سن رہے ہیں، سنتے ہیں؟ یہاں نسمع پہ نسمع جی نسمعون القرآن، ہم سب قرآن سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ واحد تھا، یہ بھی واحد کا تھا، ٹھیک ہے، تم کیا سنتے؟ تم سے یاد رکھ لیں، ایزی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر وہ آپ کہتے ہیں نا تو پھر وہ تمیز والی بات آ جاتی ہے، پھر وہ مکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تم سے یاد کر لیتے ہیں. تم کیا سنتے ہو؟ اسماء القرآن، میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون، تم سب کیا سنتے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نسمع القرآن، ہم سب ہم سب قرآن قرآن سنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ابھی پہلے بھی ایک سسٹر جو ہے اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی تھی، کوئی اتنا مسئلہ نہیں، یا آہستہ آہستہ انشاءاللہ ساری باتیں یاد ہو جاتی ہیں، ازبر ہو جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھ لیں، یعلم، جی یہ کون پڑھے گا؟ جی سسٹر حمیرہ آپ پڑھ لیں یہ والا ٹیبل. یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، یعلمون وہ سسٹر سب حفصہ جانتے ہیں سسٹر حفصہ یا وہ اپنی سب ویڈیو کو جانے. پلیز پن کیجئے تاکہ سب کو اشارے نظر آئیں. جب یہ دوسرے اسٹوڈینٹس بولتے ہیں تو پھر آپ کی ویڈیو نظر نہیں آ رہی. میری پن نہیں ہوئی، مجھے تو لگا تھا میں نے کی ہوئی. میری پن ہے ایکچولی، اسپاٹ لائٹ بھی کر دیتی ہوں، ایک منٹ ہے، چلیں ٹھیک ہے سسٹر آسیہ. ہاں جی، جزاک چلیں، اللہ. شکریہ، جزاک اللہ. یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. ہاں ایک تو سیکنڈ سسٹر، عالم ایک سیکنڈ آپ بس ایک کا کیا کہ وہ سب وہ جانتا ہے جانے کا، اب بولنے کی آسانی کے لیے پھر ہم ایک ہی لے کے چلتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، اس طرح کر کے کریں، ٹھیک ہے. پہلا والا آپ اس طرح کیا کریں، وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، پھر باقی سارے سمپل ایک کیا کریں، وہ سب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے. دوبارہ سے پڑھیں. یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا وہ جانیں گے. تو عالم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں. تو عالمون آپ سب جانتے ہیں، نو عالم ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ہو گیا ہمارا. تو اس کا مجھے ذرا بتائیں، آپ ہی بتائیں، چلیں اس کا ماضی لکھوائیں، مجھے آتا ہے لکھوا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا چیلنجنگ ہے، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، لکھوائیں ذرا آپ مجھے، کیا ماضی تھا اس کا؟ آئیں بناتے ہیں. عالم نہیں نہیں، آپ یاد کریں نا، یہ سمیہ جیسا ہے، سمیہ کی کیا بات تھی؟ یعنی سمیہ، اب
आलिमा। हाँ जी, ये देखिए ना, ये आलिमा इसमें है, आलिमा, आलिमा। ठीक है, अब दूसरा क्या बनेगा? आलिमु। वेरी गुड, आलिमू। ठीक हो गया। और ये वाव अलिफ क्या है? जमा की निशानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आलिमा, आल, आलिम अलिमता। आ- वेरी गुड, आलिम आलिमता। अलिमता। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब, आलिम हाँ आलिमतु। हाँ, अपने आप को हम क्या कहते हैं? तू कह के बात कर रहे हैं ना, ये तो अंता से याद हो गया हमें, ठीक है। तो अपने आप को हमने क्या निशानी बनाई हुई है? अलिम तू। ठीक है। फिर उसके आलिमतु। बाद इसका बनाए, आ, जमा क्या होगी? आ, अलिम। आम, हाँ, आम, अंतुम से सॉरी बनाए ना, सॉरी। अंतुम से याद रखें, अंतुम से हाँ, तो। आलिमतुम। वेरी आलिमतुम। वेरी गुड, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद नाहनु से याद करना है कुछ, और माजी के एंड में आलिम चेंजेस होते हैं। आलिम आलिमनु। हाँ जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। देखें, आप ऐसे कंफ्यूज हो रही थी, आपको तो आता है सारा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बस आपने क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, पूरे पूरे टेबल लिखें, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे अच्छे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे ये कौन सी सिस्टर मुझे लिखवाएंगी? जी, सिस्टर मेरा ने तो बड़ा अच्छा सुना दिया, आप कौन और करवाएंगी? सिस्टर सीमा, चलें आप आ जाए। आपने पहले मुदारे पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगी, ठीक है। मुदारे पढ़े। पहले मुदारे और फिर वो। हाँ, यामनु अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं। तामल तामलू आप अमल करते हैं, अमलू मैं अमल करता हूँ, अमलूना तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू मैं हम सब अमल करते हैं। ठीक हो गया, हम सब ठीक हो गया। अब मुझे इसका माजी लिखवाएं, क्या हो सकता है? ये हमने याद क्या करना है? समिया के बाब से, तो इसका रेफरेंस टेबल हम कहते होते हैं समिया, ठीक है। अब कोशिश करें, क्या होगा? अमीला अमीला हाँ, ठीक है। वो आगे अमल अमल किया, अमीला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिल तो अमिलता आपने अमल किया, पहले क्या आएगा? मिलतू आएगा क्या मिलता आएगा? हाँ? अमिलता पहले क्या? अमिलता अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सबने अमल किया, ठीक है, ना नालिमु एंड में आएगा ना। पहले तो आप ये याद रखना, इतना लिख लें, आमिर क्या होगा? अमिल। हाँ जी, एंड में अंतुम से याद रखना है, अंतुम से क्या है? ओ सॉरी, हाँ, अंतुम नहीं माना, हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अमिलना। वेरी गुड, ठीक है। ये प्रैक्टिस इस तरह करें, अब जैसे माजी साइड पे रखे, कोशिश करें मुदारे बनाने की, इस तरह अपने आप को चैलेंज करें, ठीक है। उससे आपकी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपसे सपोज मैं पूछ लेती हूँ, तामलू का माजी तो बताएं, तो आपने क्या करना? परेशान होके रोना नहीं शुरू कर देना, आपने फटाफट आमिला आमिलू आमिला आमिलू अमिलता अमिलतू, अच्छा इसका ये होगा, ठीक है। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ मिलके प्रैक्टिस करें। ग्रुप में भी आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, चलिए जी कोई सिस्टर मुझे ये बताएं, तो ये तो बड़ा अच्छा आप लोगों की सब सब जो है वो बुक्स लेके बैठ जाएंगे शुरू शुरू में। अच्छी बात है, बुक से देख के बेशक करें, लेकिन आप करने की कोशिश करें, ठीक हो गया। आगे आ जाए, नुक्ता तालीम देख लेते हैं आज का क्या है। तो हमारा नुक्ता तालीम है कि हम लोग जो नमाज में सूरज पढ़ते हैं उसको जरा हमने कोशिश करनी है डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ सूरज पढ़े। जैसे अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सूरज करनी है, उसमें से सपोज आप सूरह नास कर लें एक दिन, सूरह फलक कर लें आज, सूरह अगर ये आपको याद है सूरह असर ये कर लें, ठीक है। नहीं याद तो हम एक एक लाइन करके याद कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। आगे आ जाते हैं। मुश्किल तो शुरू में हमें लग रहा होता है बड़ा मुश्किल है, होगा ही नहीं, शैतान बैठा होता है ना साथ, लेकिन जब हमने करना शुरू करते हैं ना, हम कहते हैं अच्छा ये तो माशाल्लाह हमें याद हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो इतनी मुश्किल लग रही थी, ऐसा होता है ना। तो हमने थोड़ा थोड़ा, जैसे अब हमने तशरीह कर लिया है, थोड़े पॉइंट्स जहन में लेके आए, अच्छा ये वाली वर्ड का ये मीनिंग था, इसकी ये टीपी आई थी, इस तरह करके आपको थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह याद होगी। अब इसका फायदा क्या हो सकता है हमारी? एक तो नमाज में पढ़ के एक तो बड़ी खुशी होगी कि वाह हमें आ गया है, बेशक 2 आयत पढ़ लें, ठीक है, हमें आ गया है, हमारी थोड़ी सी जहन इस्तेमाल हो रहा होगा, वरना कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु
ایسے کر کے جو ہماری ٹرین چلتی ہے وہ نہیں چلے گی. اگر سپوز آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے تو اس کو ہم نے آرام آرام سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے الفاظ معنی کا اعادہ بھی ہو جائے گا. ظاہر ہے ہم لوگ پہلے قرآن سے ریوائز کریں گے, اچھا میں یہ صورت پڑھنے لگی ہوں, ٹھیک ہے. اسپیشلی جو ہمیں آتی نہیں ہے یا نئی نئی یاد کی ہے, یا سپوز ایک دفعہ ویسے ہی آپ ترجمے کے لیے کریں تو آپ کیا تھوڑے ریویژن بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور حافظہ کیا ہوگا, جتنا ہم دماغ کو یوز کریں گے اتنا زیادہ اس کو عادت پڑے گی کہ اچھا اتنا مشکل نہیں ہے, میں ایسے ہی فضول میں مشکل سمجھ لی تھی, ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا میتھس کرو, اکثر بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی انگلش سے بھاگ رہا ہوتا ہے, کوئی اردو سے بھاگ رہا ہوتا ہے, میرے جیسا بچہ, ٹھیک ہے. تو جب بچپن میں ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایک ہماری وہ ایک ہوتی ہے اینمی ہوتا ہے کوئی سبجیکٹ, تو جیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں, پھر ہم اسے یہی سمجھاتے ہیں نا بچوں کو, جتنی پریکٹس کرو گے, جتنا تم کرو گے اس کو اتنا اچھا تمہارا ہو جائے گا. ایسے ہی سمجھاتے ہیں نا, تو ہمیں بھی یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے. چلیں یہ جلدی سے بتائیں, لفی خسرن کا کیا مطلب ہے؟ انسان برباد ہے, البتہ خسارے میں ہے. خسارے میں. نمبر 3 یہاں پہ ہے بریکٹ میں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اردو کی مجبوری ہے سینٹینس کو با محاورہ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. عربی میں ایسی ورڈز کوئی وہ نہیں ہوتی, ہاں ہے ہوں فلانا, ایسا نہیں ہوتا, اس میں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے, یہ اردو کی مجبوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں. عصر کے معنی بتائیں. رات, زمانہ. ٹھیک ہے. ویسے تو نماز عصر بھی ہوتے ہیں لیکن کانٹیکسٹ کے حساب سے زمانہ ہی ہے, ٹھیک ہے. آمنو کا ترجمہ بتائیں. وہ ایمان لائے, وہ ایمان لایا, ہم سب ایمان لائے. وہ کیا ایمان لائے, وہ ایمان لائے. وہ ایمان لائے. اب یہ دیکھیں نا, واو الف آ رہا تھا, ہمیں پتہ چل گیا کوئی جمع کی نشانی آئی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مزید اس کو ہم پڑھ بھی لیں گے, ابھی ہم تھوڑا سا ہنٹ ہوئے رکھیے. آگے آ جاتے ہیں. ندربو کا فعل ماضی بتائیے. یہ بھی بات ہو رہی تھی نا, میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اس طرح آپ نے سننا ہے. اب ندربو نمبر کا 3 ضربنا. ہاں ویری گڈ, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. الحمدللہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی پریکٹس کی ہے. انشاءاللہ گروپ میں کوئی نہ کوئی سسٹمنیزے آپ کو اچھی اچھی مزے مزے کی پریکٹس ایکٹیویٹیز دیتی ہوتی ہیں, وہ بھی دیں گی. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت شوق سے کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا سبق, آج کے سبق میں ہم نے تقریباً کل ملا کے لیکچر 1 سے لے کے 14th لیکچر تک 174 الفاظ سیکھنے ہیں الحمدللہ, جو قرآن میں کتنی دفعہ ہیں؟ 36,000 سے زیادہ دفعہ ہیں. یعنی کہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہونے ہی والا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, سفر اپنا یہاں ختم نہیں کرنا انشاءاللہ. QC2 3 4 5 6 7 سارے کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. ریمائنڈر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا, ٹھیک ہے. اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہم نے, اور مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, ٹھیک ہے نا. ربی زدنی علما, اس کے علاوہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, یہ اور ہمیں ڈھیروں ڈھیر دعائیں مل جاتی ہیں. ہم پڑھنی چاہیے, ہمیں پڑھا کریں آپ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے, ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہماری یہ جو پاکٹ بک ہے, چھوٹا سا خلاصہ پورا ہے, ٹھیک ہے. موسٹ فریکوینٹ ورڈز جیسے ہم بناتے ہوتے ہیں نا بچوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے فلیش کارڈز یا کچھ, تو اس طرح یہ آپ کو پورا ایک کارڈ مل چکا ہے. اس کو دہرایا کریں, ٹھیک ہے. یعنی جتنے آپ کے مین ورڈز آپ کے جتنے چیپٹرز میں یوز ہیں, انفیکٹ اس میں سارے ہی لکھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ آپ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ, لفظی ترجمہ آپ لوگوں کا پکا ہو جائے گا. کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو اس کا میننگ آتا ہوگا, ٹھیک ہے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے الفاظ کے معنی کو یاد رکھنا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آتے جائیں گے, ٹیچر بھی بنیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے, پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ